Someone has said that one man and one pen can change the world. उनका एक स्टेटमेंट है, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस और सर पर ला इलाहा का ताज होना चाहिए। Did Sir Syed face any kind of challenges or hurdles while he was Sir Syed Ali Rahma, when he went to London, is AMU providing platform where girls can acquire knowledge? there are a lot of like girls hostel, तो उनमें से एक हॉस्टल है। Let's talk about admission process. If you want to take admission in each and any course, then आपको entrance। Hello ladies and gentlemen and welcome to this episode. In this episode we will talk about AMU, about its fascinating history and blend culture of AMU, the legacy of Sir Syed Ahmad Khan, the founder of Aligarh Muslim University. Plus we will also guide you through admissions and the hostel life and the different type of courses AMU is providing nowadays. Today's episode is extra special because we have an amazing guest with us, Mr. Habibur Rahman, who is affiliated with this university since last 5 years. So please tighten your seat belts and get ready for a beautiful journey into the world of Aligarh Muslim University. And please don't forget to subscribe this channel and drop a comment for a topic what you would like us to cover. Enjoy the show. Hello and thank you for coming in this episode. Okay, thank you for inviting me. First and foremost, I would like to request you to please introduce yourself so our audience can know you in a better way. Okay. This is a good opportunity for me that you invite me for your podcast. Today, I want to introduce myself. First of all, it is Habibur Rahman. I belong to Pune, Bihar. I have completed my primary education from my village. After that, I have completed my 10th and 12th from Madrasa Education Board, Patna. Then I went for higher education, Jamia Islamia Daryabad, for more higher education. There I have completed Alimiya. Then I took admission in Aligarh Muslim University for more higher education. Then I have completed from here BA Honors, and now my political science is pursuing in MA course. And if I talk about my interest is reading books and visiting historical places. That's it. Okay, that's great. Now, as I have mentioned earlier, that the topic would be on AMU, right? So suppose there are someone in the world who never ever had a conversation with someone or never ever heard about AMU. So how would you define it to them? As we know that AMU is our largest university of India. But if any person don't know about this, like 0%, then I want to say for them that AMU is famous in worldwide. This is one of the largest university of India. This is located in district Aligarh, Uttar Pradesh. And अगर इसकी बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1100 एकड़ ज़मीनों में फैली हुई है. इनके अंदर there are different types of faculties and departments available. Yes. Yeah. Okay. इसी तरीके से एक स्टूडेंट एमयू में आने के बाद अपने एम को अचीव करने के लिए जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, सपोज दैट कोई अगर लॉयर बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस, आईपीएस, ऑल थिंग्स इज अवेलेबल. Wow, great. एमयू प्रोवाइड कराती है. Okay. So now let's move to one of the important point of this podcast. Like whenever we talk about something, we talk about its history, so that our conversation can be a meaningful, right? So I would like to know the history of Aligarh Muslim University. Please explain it in a coherent and concise way. Okay. History of Aligarh Muslim University was very amazing.
if I talk about history, तो Sir Syed Ali Rahma, when he went to London for visited Cambridge University, London University, फिर वहाँ से वापस लौटने के बाद उन्होंने वहाँ की जो कल्चर देखा, तहजीब देखा, पढ़ने और पढ़ाने का जो एक मेथड देखा, स्ट्रक्चर देखा, उनको बहुत अच्छा लगा. आफ्टर डैट वो जब इंडिया वापस आए तो उनके मन में आया कि हम क्यों ना एक ऐसा कॉलेज खोले, इंस्टीट्यूट खोले, जिसमें हम अपने स्टूडेंट को उस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराएं जो लंदन के बच्चों को, स्टूडेंट को मिल रहे हैं. फिर उन्होंने इस चीज़ को लेकर अपनी बातें रखी समाज और सोसाइटी में. इस प्रकार 1875 ईस्वी में मदरसतुल उलूम के नाम से एक कैंपस कायम में आया और ये मदरसतुल उलूम 2 साल मेहनत के बाद जाकर ये वो कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से फेमस हुआ, जैसा कि आप भी जानते हैं. और एक बात ये है कि जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उस टाइम के गवर्नर, जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया लाइक लॉर्ड लिटन के हाथों से नींव पाया. फिर ये चीज़ 1920 में उनके हमियार, साथी, मददगार, सपोर्टरों ने जाकर गवर्नमेंट में अपनी बात रखी और 1920 एक्ट के तहत ये एमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया, जो आज वर्ल्ड वाइड में सामने फैला हुआ है. और ये है आपका खूबसूरत चमन. So, in your answer, you have mentioned the founder of Aligarh Muslim University, right? Sir Syed Ahmad Khan. So, indeed, whenever someone start new thing or a big thing, they face hurdles, they face challenges, they face criticism by the people. So, what was the biggest challenge for Sir Syed to make this university? Indeed, there were some people in that era who was saying to them that, it's not good, it will ruin the people and you are, misconcepting the Islam and all. So, did Sir Syed face any kind of challenges or hurdles while he was establishing this wonderful university? Okay. As you mentioned also, if anyone started any organization, not a university, if anyone started an small group or any little bit small like institute, then they face many challenges. तो सर सैयद अली रहमा ने भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, जिनको इन मुख्तसर वक्त में बयान करना नामुमकिन है. बट आई वांट टू ट्राई सम पॉइंट्स, हाईलाइट सम पॉइंट्स दैट सर सैयद अली रहमा जब उन्होंने इस चीज़ की नींव रखने की कोशिश की तो सबसे पहले उनकी जो चैलेंज आई वो समाज और सोसाइटी का था. क्योंकि समाज और सोसाइटी में उस टाइम आपको याद होगा कि किस तरह का समाज था, क्योंकि कॉलोनियल रूल वाज गोइंग ऑन दैट टाइम. यस. फिर उनको तो ये कन्विंस कराना दैट कि मॉडर्न एजुकेशन हमें फ्यूचर में फ़ायदा देगा, तो पहले उन्होंने अपने समाज और सोसाइटी को बड़ी मुश्किल से कन्विंस कराया कि नहीं, हम मॉडर्न एजुकेशन लेंगे और जो हम पर रूल कर रहे हैं हम उनकी तालीम को सीखकर, उनकी शिक्षा को सीखकर हम फिर उनका मुकाबला करेंगे और उनको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे. फिर उन्होंने इस चीज़ की नींव रखी और सबसे बड़ा जो इशू आया और चैलेंजेस आया वो फंड को कलेक्शन करने का था. क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चंद पैसों से नहीं मुमकिन था, इस वजह से उन्होंने फ़ंड के लिए गाहे बगाहे और कोचे का सफ़र किया. आपको मालूम होगा कि किस तरीके से सफ़र था. उन्होंने अपने घर में जितने माल और जायदाद थे सारे के सारे इंस्टीट्यूट के नाम कर दिया. इसी तरीके से आप नुमाइश जाते होंगे. Yes. नुमाइश इज़ फेमस लाइक फॉर ऑल इंडिया. वहाँ पर उन्होंने बुकें बेची. बुक्स बेचने के बाद जो भी पैसे हुए उसको इसमें उन्होंने डोनेट किया. इसी तरीके से उनके जो साथी यार थे, जब उनमें कभी भी पार्टी की बात होती थी, आपने सुना होगा पार्टी जो आजकल हम और आप भी करते हैं, कोई अगर किसी को ज़रा सी सक्सेस मिलती है, कामयाबी हासिल होती है, तो हम खुशी के साथ कहते हैं कि हमें पार्टी चाहिए. तो गोया अगर किसी के मुंह से पार्टी की बात होती तो सर सैयद अली रहमा उसको पॉज करते हुए, उसको रोकते हुए ये कहते, जितने रकम तुम इसमें स्पेंड करोगे तो उसी चीज़ को इसमें डोनेट कर दो, बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा, स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाएगा. इस तरीके से
इसी तरीके से एक वाक़या जो बहुत फेमस है, एक मरतबा की बात है, वो गए और एक घर में आवाज़ लगाए कि हम इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अगर आपके पास कुछ भी हो। तो पता नहीं एक औरत थी जो किस मूड में थी, घर में कुछ मसला रहा होगा, उन्होंने इनकार करते हुए जूते फेंक दिया। बुजुर्ग सा आदमी था जी, जूते फेंक दिया असद रहमा पर। एक बुजुर्ग सा आदमी था, उन्होंने सोचा, पॉजिटिव में सोचा उन्होंने कि शायद मुझे ही दिया होगा। उन्होंने ले गया और ले जाने के बाद उसकी मरम्मत कराई, और सिर्फ मरम्मत ही नहीं कराई, उसके जितने पैसे बनते थे उनका 50% उन्हें वापस करने के लिए गया। और जब फिर वो औरत बाहर आई और उन्होंने देखा कि हमने जिसके साथ नेगेटिव और बहुत बुरा बर्ताव किया था, वो हमारे साथ किस तरीके का सलूक करते हैं और हमें कुछ पैसे फंड वापस करने के लिए भी आए हैं, इससे खुश होकर वो अपने कान की बाली, हार, हर जवाहरात वगैरह लुटाने लगे। जब उनके पति उनको देखा तो उन्होंने कहा, बस कर पगली, रुलाओगी क्या, लाइक दिस। तो गोया कि इस तरीके से उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया। Indeed, that's why he is considered one of the Yeah, great yeah, personality in Indian history, right? So now let's move to the another question. What was the, apart from academics, what was the contribution of Sir Syed for the betterment of society? या सर सैयद अली रहमा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, बल्कि इसके अलावा उनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए समाज के लिए, नेशन के लिए, तो एक बड़ा और लंबा सा कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे बुकें लिखी। लाइक आपने जामे जाम का नाम सुना होगा, Yes, of course. असबाब बगावत हिंद 1857 की किताब। Yeah. इट मींस After the revolt of 1857, yeah, it was. जिसको कहा जाता है फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके बारे उन्होंने उसमें इतनी बातें लिखी कि मुसलमान उसमें पीछे नहीं था, मुसलमान भी उनमें साथ में थे और लोगों का एक हुजूम था। इसी तरीके से उन्हें आथारुस सनादीद एक बुक है जो दिल्ली के मोनूमेंट के बारे में, मुगलिया सल्तनत के बारे में उन्होंने उसमें कुछ लिखे। इसी तरीके से उनका एक मैगजीन तहजीबुल अखलाक जो आज भी जारी है, Okay. आपने शायद पढ़ा होगा। No, I didn't read it, but ओके, बट यू हैव लिसन, या बट मैंने पढ़ा है, बिकॉज मैंने कई चीज़ रिसर्च की हैं तो उसमें आया था। तो कहने का मतलब ये है कि जी उन्होंने तहजीबुल अखलाक जो मैगज़ीन उस वक्त शाया किया था, अब भी जारी वो सारी है, और उसमें समाज और सोसाइटी और ख़ास करके ब्रिटिश रूल जो हम पर अत्याचारी शासन कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें लोगों को उभारा कि ये हमारे तय गलत है और हमें एजुकेशन पर आना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने सोसाइटी की मदद की, समाज की मदद की। और इसी तरीके से एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि दीन के मामले में भी उन्होंने पीछे नहीं रहा। उन्होंने कुरान और हदीस, इसी तरीके से मॉडर्न एजुकेशन को बराबर लेके चला। उन्होंने कहा, उनके एक स्टेटमेंट है, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस, और सर पर ला इलाहा का ताज होना चाहिए। Great. Okay. So now let's move to the most important part of this conversation. And indeed, this will be useful for our audience. Like indeed, AMU is one of the greatest universities in India. Millions of students are applying each and every single year to get admission here. So can you clarify that what type of courses AMU is providing nowadays? Departments, you can talk about departments or courses. Yeah, please go ahead. Okay, if I talk about AMU education, you can say कि AMU is education hub. जिस तरीके से एक इंडस्ट्री हब होता है मनी का, इस तरीके से AMU एक एजुकेशन का हब है। और अगर इनकी फैकल्टीज़ की बात करें तो देयर आर 13 फैकल्टीज़ बेस्ड ऑन 117 डिपार्टमेंट्स। Great. या एंड 300 प्लस कोर्सेज, 300 plus courses. या 300 प्लस कोर्सेज विथ डिप्लोमाज AMU प्रोवाइड कराती है। उनके डिपार्टमेंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो बड़े फेमस है, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, इसी तरीके से सोशल साइंस, डिपार्टमेंट सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, हिस्ट्री, साइंस, there are many departments. Yes. Okay, great. As you have mentioned in the earlier part of your introduction that you have completed your graduation from Aligarh Muslim University. So suppose that one student wants to admission here, and if he gets admission here, suppose, so what are the facilities he's going to get after getting admission here? So that our audience, because our audience will be very curious to know that if I get admission over there,
So what are the facilities like room, hostel facility or dining facility and all? Okay. So if I talk about facilities, which facility AMU provided? जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने गेन किया कि AMU एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा तहजीब व तमद्दुन, गंगा जमनी, कल्चर, ये सारी चीज़ें AMU में है। अब इनका सारांश क्या है, मोरल क्या है कि जब AMU में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन पाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बात होती है रहने सहने के लिए, तो उनके लिए AMU हॉस्टल प्रोवाइड कराती है, और लार्ज लेवल पे हॉस्टल हैं, रूम्स हैं जो बड़ी आसानी से मुहैया हो जाते हैं। उसी के साथ डाइनिंग टेबल का है, पढ़ने के लिए कॉमन रूम का है। इसी तरीके से अगर ज़्यादा जुस्तजू हो तो उसके लिए लाइब्रेरी है, और आपने लाइब्रेरी का नाम सुना होगा, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जी, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ एशिया इन यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं। इसमें लाखों किताबें हैं जिससे स्टूडेंट अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पोर्ट क्लब मौजूद हैं, करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, यानी ईच एंड एवरीथिंग AMU प्रोवाइडेड। यूँ कह सकते हैं एक वर्ड में इको फ्रेंडली माहौल AMU प्रोवाइड कराती है। Now let's move to the another question, right? About culture. Indeed, AMU is known for its blend culture. So tell me, what is the special thing that AMU has which makes this wonderful culture as comparison to another universities? Okay. If I talk about culture, then जब भी कल्चर का नाम लेते हैं तो हमारे जहनों में उन स्टूडेंट जो कि AMU में रहे हैं या रह रहे हैं, दो चार बातें बिल्कुल माइंड में आ ही जाती है विदाउट एनीथिंग सोचे। लाइक ईद अलीग का वर्ड उनके जहनों में गर्दिश करने लगता है। या ईद अलीग बहुत ही एक अच्छा मोमेंट होता है अलीगढ़ वासियों के लिए और वहाँ के स्टूडेंट के लिए। ईद अलीग कहते हैं 17 अक्टूबर, जिसमें सर सैयद अलैहिर्रहमा की पैदाइश हुई थी। उनको एक इवेंट के तौर पर अलीगढ़ के स्टूडेंट और अलीगढ़ के अलुमनाई मनाते हैं। उसमें यूँ होता है कि उस तारीख से पहले 10 रोज़ पहले सारी सजावटें, लाइटिंग, दिस दैट सब शुरू हो जाते हैं, और 17 अक्टूबर आते ही सुबह से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। खास करके वो प्रोग्राम जो सर सैयद अलैहिर्रहमा के बारे में गुलिस्तान सैयद में होता है। हैव यू अटेंड? Yeah, I have attended last. ओके, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जम्मे गफीर होता है। A lot of people, Yes. say crowd. और सर सैयद अलैहिर्रहमा के दो चार बातें जो बहुत ही हाईलाइटेड हैं और जो हमारे मोटिवेशन का काम करती है। लाइक एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस, सर पर ला इलाहा का ताज होना चाहिए, एंड एजुकेशन इज वेरी नीड थिंग्स फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। Education is the most powerful weapon Yes. which can use to change the world. And someone has said that one man and one pen can change the world. Yes, you are right. Yeah. कि एजुकेशन के जरिए वन पर्सन कैन ग्रो फॉर ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। विदाउट एजुकेशन के एक इंसान, पैसा वाला इंसान भी मूर्ख के बराबर है। Okay. So now let's move to the another part of this conversation. Like imagine there are some students who wants to study in AMU, and simultaneously along with that they also want to make a career in co-curricular activities. Like they want to make a career in cricket, football, or they want to make career in arts, fine arts, or singing, dancing, hockey and all. So is AMU providing these kinds of facilities for the students who wants to study, at the same time they also want to make career in co-curricular activities? Yes, AMU is providing co-curricular activity with academic also, because ये इतना लार्ज लेवल पे है और इतनी बड़ी इसकी जो फील्ड है और जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं, इनके जो प्लेसेस हैं, काफ़ी लार्ज लेवल पे फैला हुआ है। तो AMU जहाँ एकेडमिक प्रोवाइड कराती हैं, वहीं पर को करिकुलर एक्टिविटी लाइक CEC, और CEC के अंदर कल्चरल एजुकेशन क्लब, उनके अंदर म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग,
एक्टिंग लाइक दिस तरीके से मौजूद हैं और उनका जो मेन एक लोकेशन वेन्यू कहा जाएगा दैट इज कैनेडी. यू हैव अटेंड एनी टाइम कैनेडी हॉल? I wish I attend. ओके, तो कैनेडी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रोग्राम होते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस CEC को-करिकुलर एक्टिविटी में डिबेटिंग आता है, इसी तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं कई मौक़ों पर. स्पोर्ट में आपका जो भी स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग AMU इज प्रोवाइडिंग according to co-curricular activity. Now let's move to the one of the important part of this conversation. Like in today's era, everyone is talking about women equality, women education, beti padhao, beti bachao. So is AMU providing a platform where girls can acquire knowledge and can pursue their bachelor's, their master's, their schooling and their PhD? And is AMU providing them a hostel? And please tell me, when was women education introduced at first AMU? Okay, you have asked there are a lot of questions in a short way. Okay, no problem. but I want to answer try one by one so that okay. it will be easier to understand for the audience. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं AMU में वुमेंस कॉलेज की इस्टेब्लिशिंग को बताना चाहूँगा. उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट था वुमेन एजुकेशन और इक्वलिटी के बारे में कि इक्वलिटी और इक्विटी जो मिलनी चाहिए, क्या AMU उसके लिए कुछ काम कर रही है या नहीं. लाइक दिस पॉइंट यू हैव. ओके, तो अगर इस्टेब्लिश की बात करें तो सर सैयद अली रहमान ने जिस टाइम इंस्टीट्यूट मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट किया था, सबसे पहले कि उनका ये स्टार्ट करना ही बड़ी बात थी. इस वजह से वुमेन एजुकेशन पर उन्होंने ध्यान तो दिया लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती, सो उन्होंने उस चीज़ को रेस्ट रखा, पाकि रखा. आफ्टर दैट 1906 ईस्वी में एक स्कूलिंग के तौर पर स्टार्ट किया गया. और आपने सुना होगा बेगम सुल्तान जहां जो क्वीन ऑफ भोपाल कहे जाती हैं जी, तो उन्होंने उनके पास एक लेटर पहुंचाया कि हम लोग यहाँ पर AMU के साइड में एक कॉलेज खोलना चाह रहे हैं या स्कूल खोलना चाह रहे हैं वुमेन पर. तो उन्होंने 100 रुपये उस टाइम माहाना डोनेशन करना शुरू किया. ग्रेट कंट्रीब्यूशन, राइट? या उसके बाद फिर ये कॉलेज का रूप 1922 ईस्वी में कॉलेज का रूप लिया और ये AMU के साथ एफिलेटेड हुआ. इसी के साथ आपने अगर विजिट किया होगा देयर आर लॉट ऑफ लाइक गर्ल्स हॉस्टल, तो उनमें से एक हॉस्टल है अब्दुल्ला हॉस्टल. या तो वो अब्दुल्ला जो शख्स थे उन्होंने बड़ी मेहनत से कॉलेज बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया फॉर वुमेन एजुकेशन. गोया कि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा. इस वजह से उस हॉल को अब्दुल्ला वुमेन्स कॉलेज के नाम से आज भी जाना जाता है. कई लोग तो उसको अब्दुल्ला की बेटी भी कहते हैं बिकॉज दे आर लिविंग देयर एंड अब्दुल्ला ने उसको प्रोवाइड कराया, इसलिए नाम उसका आज भी जिंदा है. Now we are in the last stage, so let's talk about admission process. Like indeed, after watching this video, there would be some audience who will be curious and enthusiastic and eager to get admission here. So what is the admission process, or where they can get admission, where they can get the information that in which date the entrance will taken and all. So please go ahead. If anyone interested to take admission in AMU, then first of all उसके लिए AMU examcontroller.com जो आपको गूगल पे क्रोम पे मिलेगा, आप उसमें विजिट कर सकते हैं. उसमें आपको एक प्रोस्पेक्टर नज़र आएगा जिसमें AMU के बारे ईच एंड एवरी डिटेल मुहैया कराएगा. इसी के साथ आप यूट्यूब चैनल वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं. इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो यहाँ से जा चुके हैं उनसे सहारा ले सकते हैं. तो इसका एक फंडामेंटल थिंग्स है कि आपको एंट्रांस पास करना है, फर्स्ट क्लास, 6th, 9th. और if you want to take admission in each and any course, then आपको एंट्रांस से like PhD, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रांस क्लियर करना पड़ेगा.
फिर आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो काउंसलिंग के बाद फिर आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। फिर ये एमयू जो लाइफ प्रोवाइड कराती है, कल्चर, एजुकेशन, एक्टिविटी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। And I want to also clarify the students here that it's very tough to get admission in MU, but it's not impossible. Like first you have to give your 100% and try it. Inshallah, you will crack it. इंशाल्लाह। Now let's sum up it by the last message. So what is the last message that you want to give to our audience? I want to give a last message for our audience कि education is a very great open. You can change your life by education. और education शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसी तरीके से एजुकेशन वो ओपन है जिस ज़रिए से एक पर्सन अपने साथ साथ अपने फैमिली, अपने ख़ानदान और अपने समाज और सोसाइटी को एक गरीबी रेखा से निकाल कर एक स्टैंडर्ड लाइफ आसानी से दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। दैट्स ऑल। If you want to know more about Aligarh Muslim University, you can also drop a comment in the comment box and we will reply to each and every single body. So if you have any queries and question, you can just drop a comment in the comment box and inshallah we will reply to each and every one. Thank you so much for joining us and thank you so much for watching this video. And please don't forget to subscribe this channel and please drop a comment in the comment box. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you so much.